So the next question, definition of literature. Somebody please read that. Literature refers to written or spoken works that express ideas, emotions, and stories through artistic language. It encompasses poetry, drama, fiction, and non-fiction that process aesthetics and intellectual value. Restaurants is not merely a reflection of life, but also a creative interpretation of human experience. So the next part, that is part 2. In the first section we were looking into language and its functions, characters and the barriers, and in part 2 understanding literature. So the term literature comes again from Latin word. It comes from Latin word. It is not there in board. You can note down. It comes from Latin word which means literature, literatura or litera. LITTERA. ये लिटरेचर करके शब्द टर्म कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड LITTERA, लिटेरा और लिटरेचुरा, चुरा, LITTERA और LITTERA TTURA, LITTERA literatura, which means a letter or alphabet, which means उसका मीनिंग है लेटर, उसका मीनिंग है लेटर और अल्फाबेट. Literature comes from the Latin word litera or literatura, which means letter or alphabet, or a letter or a writing, a letter or writing. So four meaning आता है, letter, alphabet, a letter and writing. In the present context, it has the meaning of हर्ष क्या करने के लिए बैठा है? In the present context, it has the meaning of a written document or some written works. कोई भी लिखा हुआ, टाइप किया हुआ एक किताब या कुछ काम को क्या बुलाता है? Literature. Literature refers to written or spoken work that expresses ideas, emotions, stories through artistic language. It encompasses poetry, drama, fiction, non-fiction that possesses aesthetic and intellectual value. Literature is not merely a reflection of life but also creative interpretation of human experience. Literature का मतलब ये है, if there is an experience or if there is an incident that happened, there is a way to use the language and there is a way to express it and there is a way that we can communicate that incident with others. अगर कुछ चीजें हुआ तो मैं मेरे जीवन की कहानी बता रहा तो I know from where which language and which word I should use so that the one who is hearing if I have written down everything, I know the one who is reading how it will motivate them. कचरा 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 लिख के गया तो पढ़ने वाला बंदा पहले ही क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? कौन सा अनपढ़ इंसान लिखा करके सोचेगा? फिर पढ़ने के लिए मूड होगा. Then when we make a sermon or not, it should have a flow, एक कनेक्शन होना है. ऊपर एक नया बात है, लीडर ने पढ़ा, जैसा क्रिश्चियनिटी के उसमें हमने पढ़ा था. If a reader is reading a new word above, we should explain it in our remaining part. समझ आया? Then there are characteristics, imaginative and creative. एक ही छोटी चीज को हम इमेजिनेशन करते हुए क्रिएटिव वे में बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है, लिख सकता है. समझ आया? उदाहरण, राइट डाउन द स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट. कैसे शुरू करेगा?
कैसे शुरू करेगा? यीशु मसीह के बारे में लिखिए। Isaiah chapter 7 verse 14. There, How? His prophecy is in chapter 14. It is said. You started saying about prophecy. The one who is reading, he don't know who is Jesus Christ, and he know. Do you think that he knows about prophecy? जो पढ़ने वाले व्यक्ति को यीशु मसीह कौन है पता नहीं है, फिर वो प्रोफेसी के बारे में जानेगा। So everything which we start, it should start with the present matter and it should connect with the doubt which that fellow has. Christianity, हमने कहाँ से शुरू किया? कौन सा शब्द शुरू किया? क्रिश्चियंस। थोड़ा सोच कर समझ कर लिखने की जरूरत है। कचरा लिख के दिया तो पढ़ने वाला होता क्या देगा? तो नहीं पढ़ेगा किताब। समझ आया? इसलिए बाइबल लिखने के समय लिखने वाला कितना अच्छी तरह से लिख के रखा, उसको ट्रांसलेट किया लोग भी कितना अच्छी तरह। उदाहरण, ईएसवी पढ़ने का, ईएसवी बाइबल पढ़ने का मन आता है, एनकेजेवी, केजेवी, एनआरएसवी और एनआईवी ये सब कुछ पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत है ना। वही वो जो लैंग्वेज मुझे जल्दी समझ जाने वाला और अच्छे से समझ जाने वाला लैंग्वेज है, तो मुझे मेरा मन कहाँ पसंद करता है। दिस इज द सेम वे while writing exam or assignment. It should follow that way. It should make sense when we are writing. Then emotive. It should evoke the emotions and feeling of the leaders or readers. पढ़ने वाला व्यक्ति को मैं कुछ करूं करके सोच लेके आना है। We know independent movement, freedom fight that happened in India. There are many writers who wrote many things. By their writing, many people went for freedom fight. लिखने वाला बात पढ़ने से कुछ लोग आजादी की लड़ाई में जाकर शामिल हुआ। Even today, why we have paper system in Kerala? तो we have, I don't know what about them. What about your area? केरल में सुबह पेपर आता है ना, वही। More than someone is watching some news through TV, वही न्यूज पेपर में पढ़ने से और ज्यादा बुद्धि मिलता है और कुछ करने के लिए भी सोच, क्योंकि लिखने का तरीका ऐसा है, इंफॉर्मेटिव, इमोटिव। सुबह सुबह चाय के साथ बैठा तो उनका सारी इमोशन को खड़ा करता है, मैं आज ये गलती नहीं करूंगा। यूनिवर्सल, इट डील्स विद थीम्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ कॉमन टू ह्यूमैनिटी। सारी लोगों को समझ जाने का तरीका में, सब व्यक्ति को समझ जाने का तरीका में यूनिवर्सल वर्ड्स को उपयोग करते हुए बातों को हम लिखना है। कल एक हिंदी वर्ड नया मैं सुना था, क्या था? कुछ शब्दों का एक नया शब्द बोला था ना इधर, किसने लिखा था? टेस्ट। क्या था टेस्ट? सो देयर इज ए यूनिवर्सल वर्ड इन ऑल स्टेट में समझ जाने वाला, छोट पाउन छाला। ये टेस्ट करके शायद ज्यादातर बाकी हिंदी में नहीं है। नको करके सुना? नहीं, नको करके सुना? क्या है नको? सो ऐसा वाला शब्द में आता है ज्यादातर हिंदी शब्द। इवन दो हिंदी हम अंत में वही पढ़ेगा, हिंदी शब्द का शुरुआत में देयर इज ए यूनिवर्सल हिंदी, बट हमारा खुद की भाषा घुसने से क्या हो जाता है, फर्क पड़ता है। वो मलयालम में भी है। देन एस्थेटिक वैल्यू, लिटरेचर इज अप्रिशिएटेड फॉर ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। एक चीज को कैसा एक्सप्रेस करके बताता है, वो वैल्यू में ही उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज में खड़े होकर 2-3 दिन इधर ही हुआ था, एक औरत के बारे में एक पुरुष बताता है, ये पहले पतली नहीं थी, बहुत मोटी थी, आज पतली हो गई। सुनने वाला लड़की लोगों को, लड़का लोगों को कैसे सुनेगा? मतलब ये जब ये पतली थी, ये जो आदमी, ये जो अंग, इसका शरीर देख के घूम रहा था। वेयर हाउ वी शुड एक्सप्रेस दैट मैटर वी शुड लर्न। समझ आया? उदाहरण मैंने बताया, इधर हुआ था एक आंटी के बारे में और किसी ने बताया, हमको ऐसा लगा ये क्या बता रहे स्टेज में जाकर। देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, इट अलाउस मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। The matter which I am speaking, the context where I am, that is my subject. I should consider that as my subject, then only I should use the word, I should give the meaning for that sentence.
समझ आया? देन मोरल एंड फिलोसफिकल डेप्थ, हमारा इस समाज में यह शब्द बोलने से क्या क्या सोच आएगा, क्या क्या बुरा सोच आएगा, वो भी मैंने लिखने का समय, बोलने के समय समझ के ही बोलना है। समझ लिया? सो हाउ मेनी पॉइंट? 6। लिटरेचर का फंक्शन, इट विल गिव यू एंटरटेनमेंट, खुशी और हंसी हमारे इमोशन को। देन इट विल गिव यू एजुकेशन, शिक्षा भी देता है। देन इट विल प्रिजर्व योर कल्चर। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग इधर आने के समय बताते थे कुछ उल्टा सीधा काम करके, हम तो गांव वाले हैं सर, ये डायलॉग था। गांव वाला लोग इससे शहर से ज्यादा आदर के साथ बात भी बोलेगा, काम भी करेगा गांव वाला लोग। हम बाहर आकर हम गांव वाला बोलने के समय कैसे होगा, कुछ उल्टा सीधा काम कर कर हम गांव वाला है सर। वो है कल्चरल प्रिजर्वेशन, वो खुद का कल्चर को लोगों के सामने क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। सोशल क्रिटिक, में कुछ बातें लिखने से, कुछ बातें बोलने से सोसाइटी का लोग क्या सोचेगा करके भी हम सोचने की जरूरत। हमारे दादाजी ने इजराइल और फलस्तीन के बारे में एक लेखन लिखा था मलयालम मनोरम पत्र में, पढ़ने वाला बंदा को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यूट्यूब में जब आया ये वीडियो, लिख के रखा था ये मुस्लिम का विरोध खड़ा होने वाला इंसान है करके। मतलब वो लिखने का कॉन्टेक्स्ट ऐसा था, फलस्तीन इजराइल का युद्ध चल रहा था तब लिखा। सो सोशल क्रिटिक, सोसाइटी में क्या सोचा है करके भी हम सोचना है। इमोशनल कैथारसिस, इट अलाउस रीडर टू एक्सपीरियंस एंड रिलीज इमोशन। दुख के साथ बैठा तो ये पढ़ने से थोड़ा हल्का महसूस करना है व्यक्ति, और दुख नहीं, या और दुख देने वाला बात भी होना है। मतलब समझकर, सोच समझकर वो बातों को बोलना भी है, लिखना भी है। मोरल इंस्ट्रक्शन, इट शुड गिव ए रिफ्लेक्शन टू ह्यूमन बिहेवियर। ये पढ़ने से, और एग्जाम्पल एक सिनेमा देखने से क्या क्या करने का सोच आएगा, क्या क्या करने का सोच आएगा। लव करने का, कौन बोला हो? स्कूल में ही लव कर रहा है, हमारा एक्सपीरियंस है। आई एग्री विथ यू। सो सबसे ज्यादा वही होता है हीरो बनने का। जहां हीरो का स्पेलिंग नहीं आता है, हीरो बनने के लिए निकलता है। जहां सच में हीरो के सामने जाकर गिरता है तब पूरा पूरा उतार कर सामने रख के देता है। उदाहरण बताता हूँ, कुछ लोग इंस्टाग्राम आईडी से समझ आता है। किंग, कहाँ का किंग? खुद का जिंदगी में भी खुद की इज्जत नहीं देता है। देन दैट आईडी इज किंग। सैड बॉय कहाँ का? बट ही इज लाफिंग। आर्मी बॉय, आर्मी का क्या काम किया? 4 बजते हुए हमको रूम में जाना है। आर्मी ऐसा नहीं, 4 बजते हुए और दैट इज आर्मी बॉय। वर्शिप लीडर, और कोई है वर्शिप लीडर? किंग तो इधर बैठा है, खुद को खुद इज्जत नहीं देता है, फिर भी आईडी का नाम है किंग डैनियल। संजय की क्या था? नहीं बताएगा, ढूंढो किसी ने। अमर सिंह क्या था? मिस्टर अमर सिंह। डू यू नो व्हेन वी पुट द नेम मिस्टर? कब मिस्टर कब डालता है पता है? MR। वो कोई लड़कों को बुलाते वक्त ऐसा इसका नाम है। So that is there here, moral instruction, human behavior। कुछ देखने से, किसी ने करने से मैं किया करके नहीं, मैं करने से वो किया करके से सोचने वाला लोग ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आवर मूवीज हैव एन एजेंडा। ऑल आवर मूवीज हैव एन एजेंडा। व्हाट इज मूवी एजेंडा? ये मूवी देखने से लगभग इतना लोग ये हेयर स्टाइल बनाया तो अच्छा है, ये मूवी देखने से लगभग यही कपड़ा इतना लोग खरीदा तो। मूवी का पहले आता है ना एडवर्टाइजमेंट पार्टनर्स। कहाँ हम देखते हैं, हमको सीधा हीरो हीरोइन का अंदर घुसना है। एडवर्टाइजमेंट पार्टनर, ये मूवी बनाने के लिए इतना सारा संस्था, कपड़ा का संस्था या फोन का संस्था, बैंक वाला ने मदद करेगा। ये मूवी से फर्क पड़ता है किसको? हीरो कौन से कपड़ा पहना है, कुछ लोग जाकर वही
मतलब वो कपड़ा वालों ने इनको मदद भी किया, ये मूवी देखने से इनको भी पैसा वापस भी मिला। सो देयर इज अ पर्पस, हर एक सिनेमा में एक एजेंडा है, हम कहाँ समझते हैं। रिसेंटली रामचरण का मूवी देखा था ना, डायरेक्टर था शंकर। इन शंकर्स डायरेक्शन ही हैव एन एजेंडा इन हिज एवरी मूवी। हिज मूवी कम्स विद अ सोशल मैसेज। सोशल मैसेज मतलब समाज के लिए। मैंने एक मूवी देखा था उनका, स्टालिन करके, उसमें उन्होंने एक बात बताया, यू हेल्प 3 people एंड टेल दैट 3 people टू हेल्प 3 हाउ मच 1 into 3 3 into 1 to 3 3 3 3 9। जय हो स्टालिन का, वो रीमेक में आया, मैंने तेलुगु में देखा था। देन इन ऑल हिज मूवीज ही हैज एन एजेंडा। ये आजकल सिनेमा में नहीं आया, इसलिए जो सिनेमा आपने देखा वो उसका एजेंडा था। वो सिनेमा में पब्लिकली सेवा करने वाला हीरो वही था ना। फिर भी यहाँ लोगों को पसंद इसलिए नहीं आया, वो लड़की के लिए वो जाकर क्या बना। बताओ, आपने सिनेमा देखा है? मैंने उसको रोस्टिंग वीडियो अच्छे से देखा उसी दिन। लड़की ने कुछ बोला करके, वो आजकल जवान लोगों को उतना पागल तो नहीं है लोग, कुछ लोग होगा। आईपीएल का बात है, बोला देयर आर सम पीपल दोस हु डाई फॉर आईपीएल। क्या फायदा आपको मिलता है आईपीएल का? डाटा खुद का जाता है, मम्मी पापा का खर्चा, नहीं तो किसी का वाईफाई। फिर इधर आकर क्लास से सुनना पड़ता। आईपीएल देखते हो, उनको पता भी नहीं है क्या है। अच्छा आदमी है। So even we have an agenda. Major genres of literature, genres मतलब types of literature we have, that is in our Bible. History, poetic, then drama, prose, non-fiction. There are 4 types. Elements in literature. There is a theme, there is a plot. प्लॉट मतलब हर एक मूवी का एक प्लॉट होता है, हीरो यही करेगा, वो एक प्लॉट है। वो छोटा सा सोच में से पूरा का पूरा 3 घंटा का सिनेमा बना देते हैं वो लोग। रोल नहीं, कैरेक्टर, द हीरो हैज ए कैरेक्टर, सेवियर ऑफ पीपल। सेटिंग, शूटिंग के लिए जगह ढूंढता है, कहाँ कहाँ सेट होगा। उदाहरण, मृत्यु का शूटिंग चल रहा है, एक बहुत बड़ा महल का अंदर लेके जाकर अंदर सब लोग रो रहे। ये मतलब सीनरी है, पापा मर गया, बॉडी लेके जाकर शॉपिंग मॉल के अंदर रखकर रोया, तो लोग देखकर क्या बोलेंगे, पागल है क्या? कहाँ लेके जाता है? खुद के घर पे लेके जाता है। देन देयर इज अ सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिनेमा मैंने रिलीज किया तो लोग उसको कैसा, दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू। स्टाइल, हीरो का स्टाइल समझ कर रखना। इधर तो बात अलग है, लिखने वाला लेखक का, मत्ती लिखने का स्टाइल नहीं था लूक का, लूक का नहीं था मरकुस का, मरकुस का नहीं था यूहन्ना का। समझ आया दोस्तों? देयर इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, ट्यून एंड मूड, कौन सा एटमॉस्फियर, और वो टेक्स्ट पढ़ने से उसका एक ट्यूनिंग होता है। इवन लिखने का समय भी उसका एक ट्यूनिंग पढ़ने वाला का मन के अंदर आता है। देन सिंबोलिज्म, कभी कभी कुछ जगह पर फुल स्टॉप, कॉमा जहां डालना है वहां। इसलिए मैंने पहले क्लास में वो एआई वाला व्यक्ति ने पढ़ा, कॉमा की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, पढ़ा। इधर कुछ लोग बाइबल पढ़ने के लिए बोला कि ऐसा शूटिंग करता है, ऐसा पढ़ता है, फीलिंग होना है वो बाइबल पढ़ने के समय। वो अंगल तो एक ट्यून में पढ़ता है, भजन संगीता, मतलब संगीता पर भजन पढ़ने का ट्यून ऐसा ही है लगभग। और नहीं तो फुल स्टॉप और कोमा को इज्जत देते हुए पढ़ने का है। देन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लिटरेचर इज अ थिंग व्हिच इज कंबाइंड और रिटन और स्पोकन। सो इन ऑर्डर टू राइट, इन ऑर्डर टू स्पीक, व्हाट वी नीड, लैंग्वेज। सो लैंग्वेज का लिटरेचर व्यवस्था क्या है? पॉइंट नंबर 1, इट इज अ मीडियम एंड एक्सप्रेशन। मीडियम, मध्यस्थ करने में, एक्सप्रेस करने में लैंग्वेज लिटरेचर को मदद करता है। इट इज अ कल्चरल रिफ्लेक्शन। आई एम राइटिंग समथिंग फ्रॉम माई कल्चर, फ्रॉम माई लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज एंड दैट राइटिंग इज गिविंग ए रिफ्लेक्शन अबाउट माई कल्चर। देन इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस,
बहुत पुराना किताब आज पढ़ते हुए आज भी लोग मसीह में आ रहे तो लिखने वाला बंदा का हाथ में पवित्र आत्मा ने कितना ताकत और पावर दिया होगा। तो बाइबल के बारे में बोल, समझ आया? देयर इज अ स्टाइलिस्टिक इनोवेशन। बाकी लोग ऐसा लिखा इसलिए मैं लिखता हूं करके नहीं, वो ऐसे लिखने दो, मेरा तरीका मैं इनोवेट करता हूं। इनोवा गाड़ी, इनोवा इनोवेशन, नया तरीका ढूंढना। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये पढ़ने से लेखक के बारे में पढ़ने वाला व्यक्ति को समझ। उदाहरण, मत्ती से रचित सुसमाचार पढ़ने से चुंगी लेने वाला व्यक्ति कैसा हर एक छोटी मोटी बातों में लिखता था, वैसे लिखा करके हमको समझ आया। समझ आया? तो इतना रिलेशनशिप है लैंग्वेज और लिटरेचर का। देन इंग्लिश में एक बड़ा लेखक है शेक्सपियर, उनकी बारे में ही इंग्लिश बीए इंग्लिश वाला ज्यादा पढ़ेगा। देन देयर इज अ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। लिटरेचर का, ये लैंग्वेज का बहुत पुराना सिविलाइजेशन कहानी है। हमारा बाइबल में उदाहरण जेनेसिस चैप्टर 11 में क्या हो गया? एंशियंट लिटरेचर, एपिक ऑफ गिलगामेश, द इलियाद, द महाभारत, मतलब ये लैंग्वेज का भी इतिहास ढूंढ के गया तो हर एक देश का इतिहास के अंदर उनका कनेक्शन है। देन क्लासिकल लिटरेचर, ग्रीक एंड रोमन थिंग, ये क्लासिकल लिटरेचर है। मिडिवल लिटरेचर, रिलीजियस एंड एलिगोरिकल राइटिंग, डिवाइन कॉमेडी। ओ नारायण नारायण करके आने वाले व्यक्ति के बारे में इसका अंदर एक कॉमेडी पीस के जैसा लिख के रखा है। उसका सिनेमा में भी एक कॉमेडी पीस ही है। वो बातें करके ही आएगा, लोग सुनता भी नहीं है, फिर भी उसको भी आराधना करना पड़ेगा। वो है मिडिवल टाइम पे आते आते। रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर का कहानी, ऐसा रिफॉर्म किया, थीसिस लिखकर छापने से लोग क्या हो गया, कलीसिया को भी छोड़ दिया। सो वहां भी शेक्सपियर, मिल्टन करके अलग अलग लेखक का नाम आता है। एनलाइटनमेंट, फोकस ऑन रीजन, साइंस एंड सोशल रिफॉर्म। जब पांचों पॉइंट एनलाइटनमेंट में इतिहास में आया, इवन ऊपर दिए हुए बातों को, बाइबल को भी खोज कर ही लोग समझ लिया, विश्वास किया। पहले ऐसा नहीं था, बोला सुना विश्वास। Someone spoke, I hear, I believe. When it comes to the fifth point, enlightenment, someone spoke, I did my research and I found that this is truth, then I believed. क्या था वो? इंटरफेथ डायलॉग। रवि नहीं लिख रहा और कुछ लिख रहा है। हाँ, वो किताब इधर दे दो। एनलाइटनमेंट लिटरेचर, फोकस ऑन, ये लिख रहा था ना, सिविन सर ने काम किया था सबके सामने, उसको क्या किया था, वो करना है तो मैं करूंगा, मैं इधर मेरा आवाज ठीक नहीं है फिर भी बोल रहा है तो उसका एक मतलब है। आपको लिखना है तो रूम में चले जाकर लिखना, नो प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 5, एनलाइटनमेंट लिटरेचर, इट फोकस ऑन रीजन, साइंस एंड रिफॉर्म। कुछ बातें सुना तो इफ वी हियर समथिंग वी विल ट्राई टू मेक ए रिसर्च बाय आवरसेल्फ, देन वी विल फाइंड द आंसर, देन ओनली वी बिलीव। रोमांटिक लिटरेचर, एम्फसिस ऑन इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म। मतलब ये बात है हमारा अंदर के जो फीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किताबें हैं। उदाहरण, बाइबल के अंदर किताब है लड़का लड़की का प्यार की कहानी, सॉन्ग ऑफ। Modern and post-modern literature, it is experimentation with form, language and narrative. So ये लास्ट वाला पॉइंट है आज का है। आज किसी ने एक बात लिखना है तो ऊपर दिए हुए सारी बातों को देखकर ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग थीसिस इन माई MD. When I write something and when I submit to teacher, he will say, ये लिखने का तरीका पहले ढूंढना। एक सेंटेंस पढ़ा तो कितने लोगों को कितना सोच में समझ आएगा लिखना है। मतलब किताब लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल में एक किताब लेकर लिखकर और किताब सक्सेस हुआ तो लाइफ लॉन्ग जिंदगी सेटल है। कुछ कुछ किताब बहुत पुराना है, आज भी उसको लोग खरीदता है। उदाहरण,
बाइबल आज भी लोग खरीदता है। देन पार्ट 5, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी। ऑलरेडी मैंने बोला था। सो द लैंग्वेज विच आई स्पीक, इट विल शो व्हाट इज माय कल्चर। इफ आई एम स्पीकिंग इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, दैट शोज व्हाट इज माय कल्चर एंड दैट शोज माय आइडेंटिटी। समझ गए? ऊपर हमने डिस्कशन किया, बात ही है, इसका पॉइंट है। देन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये है लिटरेरी थियरीज। हमने ऊपर लैंग्वेज का थियरीज पढ़ा, पुपू थियरी, बोबो थियरी करके पढ़ा था। वैसे ही लिटरेचर में कुछ थियरी है। फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म में बात ये है, लिखने वाला का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टाइल कैसा है, लैंग्वेज कौन सा वाला उपयोग किया, इफ दैट लैंग्वेज इज कनेक्टिंग विद द कॉन्टेक्स्ट and that content is connecting with the context or not, we will see. Reduction criticism, synoptic gospel में पढ़ा था, याद है? Literary criticism, ये सब बात है। Then structuralism, वहाँ कुछ बातें लिखने से वो symbols and signs क्या मीनिंग देता है करके भी हम देखने का जरूरत है। कुछ सिंबल्स क्या मीनिंग देता है करके भी हम हमारे लिखने के समय में देखना है। जहां फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है वहां फुल स्टॉप डाला, मतलब कैसे होगा? मैं जा रहा हूं लिखना है, मैं जा लिखकर फुल स्टॉप, मीनिंग देगा सेंटेंस को। चू, एक छोटा सा फुल स्टॉप ही है ना। जहां नहीं डालना था वहां डालने से पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग। थर्ड वन, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, it examine literature in relation to class struggle. For example, I am writing a note, I am writing a kitab, a book, and in that book mostly I am putting the low class people, उनका इज्जत ही गिराते हुए मैंने किताब लिखा, उसको पब्लिश करना नहीं देगा। ISBN करके एक सेक्शन है राजा राम मोहन राय कलकत्ता में। So when if I want to release ये किताब, इसका भी होगा ISBN, ये नंबर देने वाला होता है कलकत्ता में ISBN, समझे? रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। सो व्हाट दे विल से, ये किताब ये पढ़ने से ये वाला जाति को अच्छा नहीं लगता, इसलिए किताब को पब्लिश नहीं। अभी समझ आया? एक किताब लिख कर पास करना तो कितना प्रोसेस है, इसके बीच में बाइबल हमारे हाथों में आ गया। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, कुछ जगह पर लड़की लोगों का नाम, तब लड़की लोगों का सारा से उन लोगों का झुंड क्या बोलेगा, ये हमारे लिए। वी हैव ESV बाइबल वर्जन इन फेमिनिस्ट एप्लीकेशन में है। देन साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, ये साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है। कभी कभी कुछ बातें में लिखने से पढ़ने वाला व्यक्ति का मन का अंदर से कुछ सोच आकर वो ऐसा ही बन जाता है। कभी कभी PUBG खेलने से कुछ लड़का लोग कैसा बन गया, हमेशा आज भी कुछ लोग खेलता है। That is psychoanalytic. Post-colonial criticism. There was a time we have colony system. ब्रिटिश लोग आया था, they were colonizing the country. कॉलोनी बनाकर वहां राजगी करते थे। So मैं लिखने वाला किताब कौन सी समय में, कौन सी कल्चर में, कौन सी आइडेंटिटी देता है करके भी मैं देखने का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था इंडिया के बारे में, इंडिया का अंदर से लिखे हुए लोग ज्यादा इंपोर्टेंट किसको दिया, इंडिया, और इसको पब्लिश करना है तो बड़ा जाति वाला का मतलब से इंपोर्टेंस कहाँ चले गया, नीचे जाति वाला लोग। देन रीडर रिस्पॉन्स थियरी, पढ़ने वाला बंदा फीडबैक देने के लिए मैं मेरा ईमेल और फोन नंबर वहां देने की जरूरत है। वो कब देता है पता है? कोई भी वो लोग पूछो उसका उत्तर में दूंगा करके जब कॉन्फिडेंट होगा तब, जैसा प्रचार करने का समय समझ आया करके पूछते हैं ना, वो तरीका। इसलिए किताबों के पीछे एड्रेस दे देता है पूरा, प्रत्याशा दीपम तेपा डाला पूरा मोबाइल नंबर, अगर वो बोलकर गाली दिया तो भी वो सुनने का है। Deconstruction challenges fixed meaning and explores contradiction within text. फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन में कहा से कॉपी किया क्रिश्चियनिटी इज रिलीजन, कंक्लूजन में आगे सार ने बताया था रिलीजन नहीं है, फिर लिखा है क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए
एक ही बंदा लिखा, इंट्रोडक्शन में लिखा क्रिश्चियनिटी से रिलीजियन, कंक्लूजन में तो क्या लिखा? मतलब खुद का सोच का बीच में लड़ाई चल रहा है, फिर तू क्यों लोगों को क्या लिख के समझाएगा? सीधा बात है। प्रचार शुरू करने का समय एक बात था, अंध होते हुए यू डोंट हैव ए स्टैंड व्हेन यू आर स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में सब बातें हैं। कुछ लोग हैं पहले लिखा और एक बार लिखा सर, आधा लिखा सर, तीसरी बात दिखाओ, नहीं लिखा। मतलब खुद का ही बात है, खुद का ही आवाज है, खुद को ही डाउट है। पहला कॉन्फिडेंट था, मैं झूठ बोलने से इंसान विश्वास। सेकंड क्वेश्चन आया, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, आधा लिखा। फिर तीसरी सवाल आया, खत्म, नहीं लिखा। फिर बाकी सब सुनना पड़ता। रोल ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेरी स्टाइल। ये जो लैंग्वेज को लिटरेरी स्टाइल में उपयोग कैसा होता है? आपका ईएसवी बाइबल है तो खोल कर भजन संगीता 23 के नीचे देखना, मेटाफोर, अलिटरेशन, आयरनी, सिंबोलिज्म, इमेजरी, डिक्शन सब लिखा है। इफ आई एम राइट, भजन संगीता का वहां ही है, वही है भजन संगीता 23 के साइड। इमेज, मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, अपोस्ट्रोफे, सेम बात है ये भी। हाँ, भजन संगीता 23 का वहां देखो, 24 के नीचे डब्बा। सो बाइबल में कभी कभी एक इंसान को बकरी की समान दर्शाया, इसका मतलब ऐसा नहीं हो बकरी का पेट से जन्म हुआ। उदाहरण इसका जल्दी छोड़ बोल के जाता। कभी कभी हम तुलना करता है, वो लिखने का एक तरीका है। कभी कभी हम इमेजरी यूज करता है, एक शेर को दिखाकर हमारा ताकत को हम दिखा सकता है। शेर का सन, शेर का पुत्र, इसका मतलब ऐसा नहीं है जंगल में जन्म हुआ। वो शेर की जैसा ताकत है करके बोलने के लिए हम एनिमल को उपयोग किया। मतलब ये लैंग्वेज में इतनी सारे बातें उपयोग करता है। सटायर, सटायर मतलब है किसी को मारना है। उदाहरण मैंने अभी ये पहला पूछा तो लिखा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। कुछ लोगों को मारने के लिए भी मैंने बोला, उसको सटायर बोलता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कौन बोलता है उसको छोड़ दो, उसका मन का अंदर बात है तो कौन, उसको सटायर करना आता है, सटायर। सिंबोलिज्म, कुछ बातें बताने के लिए सिंबल का उपयोग करना। इमेजरी और डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग ट्यून एंड मूड। वो एक शब्द पढ़ने से गुस्सा, प्यार, सब इमोशन को हम रेस कर सकते हैं पढ़ने वालों का। देन ये चेंजेस दैट हैपन इन लैंग्वेज एंड लिटरेरी। फर्स्ट इट वाज यूज्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन, समाज में बात करने के लिए यूज किया। देन टेक्नोलॉजी, मीडिया आ गया, तभी हमारा भाषा का उपयोग है। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वी आर डिपेंड टू ईच अदर, ऑल नेशंस आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। विदाउट इंडिया, वो बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, विदाउट अमेरिका, अमेरिका सोचता है विदाउट अमेरिका देयर इज नो अदर, विदाउट चाइना देयर इज नो अदर, सो वी ऑल आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। इसलिए इधर का प्रधानमंत्री कभी कभी वहां जाता है, वहां प्रधानमंत्री कभी कभी इधर आता है। वही business and all these things, all countries are dependent, and those country who have the strong hold over every country, they will be the king always, rules makers। अभी कौन है? अमेरिका एंड इजराइल। सो उनकी पास से ही ज्यादा हमको मदद मिलता है। इवन ये जो टैब में लेके खड़ा हूँ चाइना का है, हाँ, इंक्लूडिंग चाइना। देन लिटरेरी इनोवेशन, राइटर कोइन न्यू एक्सप्रेशन एंड न्यू स्टाइलिस्टिक फॉर्म। पुराना तरीका में लिखना करके देयर इज नो रूल दैट वी हैव टू राइट इन द ओल्ड वे। इफ यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन फाइंड आउट योर ओन वेज। समझे? ये ऊपर हमने पढ़ा है लैंग्वेज लिटरेचर से द्वारा उसका इंपोर्टेंट क्या है, हमारा कल्चर को लोगों को दर्शाता है, हमारा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को और आगे बढ़ाता है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, एम्पैथी एंड इमेजिनेशन बढ़ाता है। हमारा एम्पैथी मतलब किसी के ऊपर कंपैशन होना,
ये पढ़ने से लगभग 2-3 लोग जाकर मदद करेगा। सोशल इंसाइट, सोसाइटी में ये करेक्ट है ये करेक्ट नहीं है करके भी हमको सोच विचार आएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, मेरा जो पुराना बात है उनको कैसे संभाल के रखना है करके भी मुझे समझ। उदाहरण, आदिवासी कल्चर को संभाल के रखना है करके किसको सोचाना है? किसी ने ऐसा उसके बारे में कुछ लिखा? पता नहीं। कमिंग टू कंटेम्पररी ट्रेंड्स, आज का युग में वी हैव डिजिटल लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डिजिटल लिटरेचर, आई डोंट हैव पेपर विथ मी, दिस इज डिजिटल पेपर, समझ लिया? ग्लोबल इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इवन इंग्लिश इज डिफरेंट इन मेनी प्लेसेस। ये जो इंग्लिश अलग अलग जगह पर अलग है। Interdisciplinary approaches, in order to write on one topic we have to refer to all other subjects. एक टॉपिक के बारे में लिखने के लिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इस सारी चीजों की तरफ से खोजी की ही हम एक किताब को लिख सकता है। एको क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग ऑन राइटिंग बुक्स, पेपर बनाने तक किसको करना पड़ेगा? पेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो टुडे दैट इज अ मैटर। पेपर बना के गया, पेड़ काट के गया तो पर्यावरण में क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू आवर एनवायरनमेंट? तो दैट इज आल्सो अ मैटर एट प्रेजेंट। ये फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज का कुछ उदाहरण नीचे दिया है, ऊपर डिस्कशन किया हुआ। लास्ट वाला, लैंग्वेज क्लैरिटी, इट्स सिंपली द वे आई एम एक्सप्रेसिंग, it should be clear, it should be short and it should give the proper message to the hearer. ये हमारा टॉपिक में नहीं था, मैंने कॉपी पेस्ट किया उसको। If you are writing something, खुद को पढ़कर समझाना आना है। लिखने के समय कुछ अक्षर को जोड़ दिया करके नहीं, लेटर वो खुद पढ़ के समझाना भी आना है। किसी ने उसके अंदर से एक सवाल पूछा तो भी उत्तर भी, दैट इज लैंग्वेज क्लैरिटी। ये गूगल से कॉपी किया तो नहीं होगा, क्योंकि गूगल बहुत बड़ा सोच वाला है। उन्होंने ट्रांसलेशन करके देगा उनकी दिमाग में, हमारा दिमाग नहीं है, तो हम क्या करना पड़ेगा? फिर वो असाइनमेंट को लिखना पड़ेगा। सिंपल मैसेज, क्लैरिटी हो गया, क्लैरिटी मिला। वो कॉपी करके खुद लिखा करके आया तो भी नहीं होगा, क्योंकि हम भी कॉपी किया है। लैंग्वेज डिक्लेरेशन, हाँ वो एक उदाहरण दिया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कहाँ गया? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी फैसिलिटेटेड इन ड्यू कोर्स। यू कुड से वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट सून। उतना बड़ा सेंटेंस का क्या जरूरत है? नीचे हो गया, हम हमारा प्रोजेक्ट को जल्दी से शुरू। वो बोलने के लिए ऊपर बोला द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी फैसिलिटेटेड इन ड्यू कोर्स। सीधा क्या बोलना चाहता था इंसान? हमारा असाइनमेंट को हम अभी शुरू करेंगे। हमारा जो बीटीएच का सेकंड ईयर का जो असाइनमेंट है, जो तू और मैं भी लिखता हूँ, अब पेन से लिखता है किताब में, वो नहीं लिया तो फेल होगा। वो जो सब्जेक्ट है रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का नोट्स, हम वो लिखेंगे। मैसेज क्या है इतना बड़ा बात का? क्रिश्चियनिटी सब्जेक्ट, रिलीजन सब्जेक्ट में क्रिश्चियनिटी टॉपिक उसका असाइनमेंट लिखेंगे। ये सीधा बोलने का कहाँ से लेकर घुमा के आया? बचपन से लेकर, जन्म से लेकर घूम घूम के कराकर बोला यीशु मसीह अच्छा है। कुछ लोगों का असाइनमेंट था क्रिश्चियनिटी क्या है, सेवकाई करने के लिए। फिर नीचे जाके लिखा यीशु मसीह ने सेवकाई किया, 6 लोग सेवकाई किया, हम भी सेवकाई। I declare my commitment to my improving my academics। और एक उदाहरण, मैंने उदाहरण, ये तो लैंग्वेज डिक्लेरेशन है। Every word, every communication which we have, that should be declared by ourselves, then only it will get declaration from the hearer। मैं जो बातें बोलता हूँ, जो करता हूँ, खुद मुझको डिक्लेरेशन होना है, नहीं तो सुनने वाला मुझे डिक्लेरेशन नहीं। What is डिक्लेरेशन? बाइबल में लिखा है thus says the Lord, मतलब इसके आगे इसके पीछे कोई सवाल भी नहीं पूछना, सीधा का सीधा कर देना। बाइबल में है thus says the Lord, ये यहोवा यूं कहता करके लिखा है।
So every word which we speak, that should be out of declaration. I declare my commitment to improving my academics. एक बंदा का डायलॉग था, there is no compromise in. तुरंत मैंने उसको एक सवाल पूछा, फिर 30 तारीख को असाइनमेंट देने का था, याद था. So if I am declaring a sentence, it should declare everything which I did. समझ आया? उदाहरण के लिए आज का प्रचार था, कौन सी कलीसिया का था? एफेसियंस. सो उन्होंने प्रचार में बोला, मैं बाइबल पहले पढ़ता था, धीरे 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 क्या हो गया. ये बोलने से आपको संदेश ऐसा दिया कि आप लोग भी ऐसा करो, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया ये गलत है, वो डिक्लेयर किया, और उन्होंने ये मैसेज किया बाइबल पढ़ने के समय पे पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसा डिक्लेरेशन किया. सो व्हेन वी स्पीक समथिंग दैट शुड हैव ए डिक्लेरेशन. इसको उदाहरण मैंने दिया, कंक्लूजन. देन दिस पार्ट आई एम गिविंग टू यू. You have to write 2-3 works for this subject. Writing the notes. Second, writing the history of English language. I will take the class because मुझे पता है असाइनमेंट कैसा मेरे हाथों में आएगा. रात को क्लास होगा आज भी. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज. इसका एक बड़ा इतिहास है पीछे, ये लैंग्वेज कैसे आया. व्हाट इज योर ड्यूटी. वागड़ी का शुरुआत कैसे हुआ, कौन सा भाषा सुनने से हुआ, वो वागड़ी वाला लोग कितने लोग हैं, वागड़ी बोलने वाला कितना लोग हैं. हाथ पूरा उठाना, वही मैंने अभी सिखाया डिक्लेरेशन. वागड़ी नहीं आता है. खुद का कल्चर को धोखा देने वाला पहला इंसान इधर ही बैठा है. नहीं आता वागड़ी. वही मैंने अभी बोला था, डिक्लेयर जो है पक्का है, उसको हाथ पूरा उठाना. कितने लोग हैं. सो राइट ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योर मदर टंग. कहां से आया, पहले से कहां शुरू किया. इंटरनेट में कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा. मेटा ए से कॉपी किया तो गलत है. देन मराठी वाला एक ही है, दैट इज योर ड्यूटी मराठी का. देन नेपाली वाला राइट डाउन इन इंग्लिश, नेपाली में नहीं. मैते. देन which language you speak in your language village. Write down the history of that language, that is your assignment. गुजराती वाला गुजराती. और कोई लोग है इधर? हाँ? फायदा है, नहीं तो आज से लेकर उधर वागड़ी में बात नहीं करना. नहीं तो फिर आप क्यों हाथ उठाया. मैंने आपको थोड़ी बोला वागड़ी की जगह पर हाथ उठाने के लिए, खुद हाथ उठाया. सो वागड़ी, मराठी, नेपाली, हिंदी मैं बताऊंगा, और नेपाली, अरुणाचली. अरुणाचली भाषा है क्या. सो यू राइट डाउन अबाउट हिंदी. सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस प्रेजेंटेशन इधर होगा. नेपाली का प्रेजेंटेशन होगा, मराठी का होगा, वागड़ी का होगा, गुजराती होगा. मैंने इंग्लिश में खुद की भाषा का इतिहास लिखने के लिए बोल रहा हूँ. मुझे पता है वागड़ी में अक्षर नहीं है, वो लैंग्वेज का कमजोरी है, मुझे पता है. हिंदी में नहीं लिखना, इन इंग्लिश. देन एनी अदर लैंग्वेजेस. एमपी वाला का कौन सा लैंग्वेज है. हमारी मदर टंग आदिवासी का, एक बार हिंदी नहीं है. आदिवासी भाषा बात करता है. राइट दैट. You have to come here and you have to explain with confidence. मेरा भाषा ये है, मतलब खुद की कल्चर को दिखाने के लिए मौका मिला. आज जैसे ढूंढ के लिखना, डेट में नहीं दिया. डेट में इसलिए नहीं दे रहा हूँ, there is no compromise in. So if you have that sentence in your mind, जहाँ टाइम मिलेगा पूछेगा, शुरू करेगा. मैं बीच में पूछूंगा एक समय पर. पूरा नहीं किया तो भी शुरू किया वाला कागज मुझे नहीं दिया था, वो सब्जेक्ट फिर लिखना नेक्स्ट ईयर. मतलब लैंग्वेज कोई भाषा बोलना पड़ेगा.
इंग्लिश आप वो भाषा बोला था हमको क्या समझ आएगा? इतना सारी पूरा का बातें समझाने के बाद भी कॉन्टेक्स्ट समझकर जो भाषा यूज करना है वो भाषा यूज करना। आप आपका आदिवासी भाषा लेके आकर अगर बोला तो हमको थोड़ी समझ आएगा। So in the last section I will take 2 classes, history of English language and history of Hindi language. Not रात को, खाने के बाद लेंगे, don't worry। आज